ایک زخمی پری، ایک غریب لکڑہارا اور جنگل کی خاموشی۔ تو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے یہ کہانی، تو چلیے سنتے ہیں اس کہانی کو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک پریزادی اور ایک لکڑہارے کی بہت ہی دلچسپ کہانی سنائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ نے اس کہانی کو آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا، تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ بہت ہی حیرت انگیز کہانی ہے۔ برف سے ڈھکی وادیوں میں ایک پرسکون جنگل کے درمیان ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ نام تھا عارف۔ وقت نے اسے جھکا تو دیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی امید کی چمک باقی تھی۔ وہ ہر صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ اپنی پرانی کلہاڑی اٹھا کر جنگل کی جانب نکل پڑتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر میں بیچ آتا۔ اس کا مقصد بس اتنا تھا کہ کسی طرح اپنی بیمار ماں کی دوا اور 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ محبت، خواب، تعلق، مائنس، یہ سب اس کے لیے کسی افسانے کی بات تھی۔ مگر قسمت جب کروٹ لیتی ہے تو تخت و تاج والوں کی تحریر بھی مٹا دیتی ہے۔ ایک روز کی بات ہے، وہ جنگل میں اپنی کلہاڑی سے درخت کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب چمک پر پڑی۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے نوری سی روشنی نکل رہی تھی، جیسے کوئی چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ تعجب اور ڈر کے باوجود عارف نے قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ قریب جاتا، روشنی گہری اور روشن ہوتی جاتی۔ آخر کار جب اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں ایک حسین اور جمیل پری بے ہوش پڑی تھی، جھیل جیسے نیلے لباس میں، چہرے پر روشنی اور لبوں پر ہلکی مسکان۔ عارف سہم گیا، مگر اس کا دل کسی اجنبی جذبے سے بھر گیا۔ وہ جھک کر اس کے پاس گیا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ پری کی پلکوں میں حرکت ہوئی اور وہ دھیمے سے بولی، مجھے بچا لیا، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے قید ہو جاتی۔ عارف کچھ سمجھا نہیں، مگر اس کے لفظوں میں ایسی سچائی تھی کہ اس نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ پری نے اپنے لباس کے دامن سے ایک ننھا شیشے کا تعویذ نکالا اور عارف کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تم نے مجھے بچایا ہے، اب میں تمہاری مدد کروں گی، مگر اس تعویذ کی حفاظت کرنا، یہ صرف تمہارے دل کی پاکی کا انعام ہے۔ اتنا کہہ کر پری ایک ہلکی سی روشنی میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ عارف ٹھگا سا رہ گیا۔ وہ تعویذ کو دیکھتا رہا، پھر اپنے دل کے قریب چھپا لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آج اس کا مقدر ایک نئے سفر کا آغاز کر چکا ہے۔ عارف اس روز جب جنگل سے لوٹا تو اس کی چال میں کچھ علیحدہ سی نرمی اور آنکھوں میں انجانا سکون تھا، جیسے کسی نے اس کے تھکے ہوئے دل کو امید کی چادر اڑا دی ہو۔ اس کے سینے کے پاس کرتے کی تہ میں چھپا وہ ننھا شیشے کا تعویذ ہر قدم پر ہلکی سی گرمی چھوڑ رہا تھا، گویا اس میں کوئی روحانی طاقت سمائی ہو۔ ماں نے اس کی صورت دیکھتے ہی پوچھا، بیٹا آج کچھ الگ سا ہے تیرے چہرے پر، کیا ہوا؟ عارف مسکرایا، امی بس یوں ہی، آج کچھ خاص ملا جنگل میں۔ وہ تعویذ کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر کسی وجہ سے اس کی زبان رک گئی۔ شاید پری کے لفظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اس کی حفاظت کرنا، یہ صرف تمہارے دل کی پاکی کا انعام ہے۔ ادھر شہر کے قلعے میں بادشاہ سلطان فرہاد میر کی آنکھوں میں نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کئی راتوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا، جس میں ایک شیشے کا تعویذ تھا، روشن، پرسرار اور ساتھ ہی ایک سایہ جو اسے دیکھتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ بادشاہ نے درباری نظومیوں کو بلایا۔ اس نے ستاروں کا حال دیکھ کر کہا، جہاں پناہ، آپ کی تعبیر میں جو تعویذ ہے وہ آپ کے تخت کو بچانے والا ہے، مگر خطرہ بھی بڑا ہے۔ وہ تعویذ اب کسی اور کے پاس جا چکا ہے، ایک غریب مگر پاک دل انسان۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا، پورے ملک میں ڈھونڈو وہ تعویذ، جو بھی اسے لائے گا اسے انعام ملے گا، اور اگر کوئی چھپائے تو اسے غدار سمجھا جائے گا۔ ادھر عارف کو کچھ محسوس نہ ہوا، مگر تعویذ کی گرمی اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رات کو جب وہ سونے چلا تو سپنے میں پھر وہیں پری آئی، اس کے چاروں طرف بادلوں سا دھواں اور آنکھوں میں اداسی۔ عارف تعویذ اب محض ایک تحفہ نہیں، یہ اب ایک امتحان ہے۔ بادشاہ کو اس کی تلاش ہے، مگر اس کے دل میں لالچ ہے۔ اگر یہ تعویذ غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو بہت کچھ تباہ ہو سکتا ہے۔ عارف گھبرا کر جاگ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ اب ایک عام انسان نہیں رہا؟ کیا اس کی زندگی کا سکون چھننے والا تھا؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، تیز، سخت اور حکم دینے والی، باہر آؤ لکڑہارے، بادشاہ کے سپاہی تمہیں بلا رہے ہیں۔ دروازے کی دستک کسی عام دستک جیسی نہیں تھی، وہ ایک اعلان تھا، ایک اطلاع کہ اب عارف کی زندگی پہلے جیسی نہ رہے گی۔ ماں گھبرا گئیں، بولی، بیٹا کیا تو نے کچھ غلط کیا ہے؟ عارف نے ان کا ہاتھ تھام کر اطمینان دیا، نہیں امی، جو بھی ہوگا میں سچ کے ساتھ رہوں گا۔
बाहर शाही सिपाही खड़े थे, माइनस तेज आंखें, लोहे की जंजीरें और घोड़ों की सूंधी मिट्टी में लिपटी टापे। उनमें से एक ने रूखाई से कहा, तुम्हारा नाम आरिफ है? जी, उसने सर झुकाकर जवाब दिया। शहंशाह वक्त तुम्हें दरबार में तलब करते हैं, चलो हमारे साथ। आरिफ ने माँ की तरफ देखा, आंखों में डर मगर होठों पर सब्र। माँ ने उसके कान में धीरे से कहा, जो सच है उसी पर कायम रहना बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। शाही महल की रौनक आम आदमी को अंधा कर सकती थी। सोने के फर्श, झूमरों की लटकती रोशनी और दीवारों पर बहते हुए झरनों जैसी नक्काशी। आरिफ एक कोने में खड़ा था और सामने सुल्तान फरहाद मीर अपनी बादशाही शान और शौकत में तख्त व ताज पर विराजमान। सुल्तान ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, तुम जंगल में लकड़ी काटते हो? जी, जहां पना। कुछ दिन पहले वहां कोई अजीब चीज मिली? कोई रोशनी, कोई तावीज? आरिफ का दिल जोरों से धड़कने लगा, मगर उसका चेहरा ठंडा रहा। नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं देखा। एक खामोशी पसर गई। फिर वजीर आजम ने सुल्तान के कान में कुछ कहा। सुल्तान ने उंगली उठाकर हुक्म दिया, इसकी झोली, लिबास सब तलाशी लो। सिपाही झपट पड़े। आरिफ की आंखें अब डर से नहीं बल्कि एहसास से कांप रही थीं। क्या तावीज अब हाथ आएगा? मगर ताज्जुब हुआ जब तलाशी में कुछ न निकला। असल में परी की दी हुई दुआ ने असर दिखाया था। तावीज अब आरिफ के जिस्म में समा गया था, सीने के करीब, दिल के नीचे, जैसे उसका हिस्सा बन गया हो। सुल्तान की आंखें सिकुड़ गईं। अगर झूठ बोला है तो इसकी कीमत जान से चुकानी होगी। मगर तभी एक रोशनी सी हवा महल में फैल गई और सुल्तान का चेहरा साया सा पड़ गया। सब कुछ अचानक थम गया। शायद तावीज ने उसे बचा लिया था। अभी के लिए आरिफ को महल से बाहर कर दिया गया, मगर उसे एहसास हो चुका था, ये महज एक तलब नहीं थी, ये जंग का आगाज था। शाम गहराने लगी थी। आरिफ महल से लौटते हुए बेहद सोच में डूबा हुआ था। हर कदम उसके लिए भारी हो गया था। सुल्तान की आंखों में जो शक था वो यूं ही नहीं था, और न ही वो तावीज एक आम चीज थी। उस रात जब वो घर पहुंचा तो माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तेरा चेहरा जैसे किसी और की जिंदगी बयान कर रहा है। आरिफ ने पहली बार माँ को सब कुछ बता दिया, माइनस परी, तावीज और बादशाह का सवाल। माँ थोड़ी देर तक खामोश रही, फिर धीरे से बोली, बेटा शायद तू नहीं जानता कि ये तावीज क्या है, लेकिन मैं जानती हूँ। आरिफ की आंखें फैल गईं। आप जानती हैं? माँ ने कांपती आवाज में बताया, ये तावीज कभी तुम्हारे वालिद के पास था। वो भी लकड़हारा थे, मगर बहुत नेक और बहादुर इंसान। एक रोज उन्हें भी एक परी मिली थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें, मगर उन्होंने इस तावीज को किसी लालची हाथ में जाने नहीं दिया। इसी वजह से तुम्हारे वालिद को मार दिया गया, और वो शख्स कोई और नहीं, यही बादशाह फरहाद मीर था। आरिफ की सांस रुक गई। मगर क्यों? बादशाह को इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि ये तावीज शाही खानदान की पहली मल्लिका की निशानी है जिसे परियों ने दिया था। कहा जाता है कि जिस इंसान के पास ये तावीज हो और उसका दिल पाक हो, वही सच्चा वारिस बन सकता है तख्त का। बादशाह की नस्ल उस हक की वारिस नहीं, वो बस तावीज की ताकत को अपना अधिकार समझता है। अब आरिफ की समझ में आया कि सुल्तान को क्यों बार बार एक ही ख्वाब आता है। दरअसल तावीज उसे याद दिला रहा था कि वो तख्त पर झूठे तरीके से बैठा है। मगर उसे ये कैसे पता चला कि तावीज अब मेरे पास है? आरिफ ने पूछा। माँ बोली, बेटा बादशाह ने जंगल में जादूगर और सीकर भेजे हैं। वो हर हलचल, हर चमक को महसूस कर सकते हैं। जब तुझे परी मिली और रोशनी फैली तो सुल्तान को उसी वक्त इत्तिला मिली। उसके पास ऐसे जादुई नक्शे हैं जो परी की मौजूदगी को दर्ज करते हैं। तभी कमरे की दीवार पर एक रोशनी सी लहर उठी और परी फिर से नमूदार हुई। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। आरिफ, अब वक्त आ गया है सच जानने का। तुम सिर्फ गरीब लकड़हारे नहीं, तुम्हारे अंदर शाही खून है, और तावीज ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल अब भी नफरत से पाक है। आरिफ को जैसे जमीन हिलती महसूस हुई। क्या मतलब शाही खून? मैं तुम्हारे वालिद सुल्तान के सगे भाई थे, जिन्होंने तावीज को बचाया और जंगल में गुमनामी इख्तियार की। मगर अब हक तुम्हें पुकार रहा है। आरिफ की रूह कांप उठी थी। जिस सादगी को उसने अपनी पहचान समझा, अब उसी के पीछे छुपा था एक शाही सिलसिला। परी की आंखों में अजीब सी चमक थी, मगर लहजा जख्मी। तुम्हारे वालिद शहजादा अरमान मीर सुल्तान फरहाद मीर के छोटे भाई थे। तख्त पर उनका हक था, मगर उन्होंने बादशाहत को ठुकराकर परियों के इल्म और हिफाजत के रास्ते को चुना। उन्होंने इस ताबीज को अपने पास रखा क्योंकि वो जानते थे कि तख्त पर बैठने वाला शख्स अगर लालची हो तो ये दुनिया तबाही का शिकार हो सकती है। आरिफ अब तक निशब्द था। उसके अंदर जैसे तूफान उठा हुआ था। गरीब होने का जो सुकून था, अब उसकी जगह एक भारी विरासत ने ले ली थी। तो मैं एक शहजादा हूँ,
हाँ, परी ने सर झुकाकर कहा, मगर तुम शहजादगी का दावा नहीं कर सकते जब तक कि तुम तख्त तक खुद नहीं पहुंचते। आरिफ की आंखों में एक चमक थी, मगर उसके लफ्ज भरे हुए, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ माँ की सलामती और अमन चाहिए इस शहर में। परी मुस्कुराई, यही तो सबूत है कि ताबीज़ ने सही इंसान को चुना है। उधर महल में सुल्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे अब यकीन था कि ताबीज़ आरिफ के पास ही है, मगर सवाल ये था क्यों उसने झूठ बोला, और सबसे बड़ा खौफ ये था कि कहीं वो तख्त के लिए दावा ना कर बैठे। इसलिए उसने अपने वजीर से कहा, अब वक्त है आरिफ को सबक सिखाने का, उस पर बगावत का इल्ज़ाम लगाओ। दरबार में ऐलान हुआ कि आरिफ नामी शख्स पर सुल्तान के खिलाफ साजिश करने का शक है, उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। अब आरिफ के पास दो रास्ते थे, या तो भाग जाए या मुकाबला करे। मगर परी ने कहा, तुम्हें अब छुपना नहीं, अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। वो उसे जंगल की गहराइयों में ले गए जहां कभी उसके वालिद ने ताबीज़ की हिफाजत की थी। वहां मौजूद था एक पुराना पत्थर जिस पर शमसी नक्श बने थे। परी ने अपनी उंगली से ताबीज़ को छुआ और पत्थर दो हिस्सों में खुल गया। अंदर थी एक सीढ़ी जो अंधेरे में उतरती चली जाती थी। यह है इल्म का तहखाना, परी ने कहा। यहाँ तुम्हें वो सब सिखाया जाएगा जो तुम्हें अपने हक के लिए चाहिए। इल्म, तज़े हुकूमत, हिफाजत और सच्चे शहजादे की तरह सोचने का हुनर। आरिफ ने पीछे मुड़कर अपनी माँ के शहर की तरफ देखा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। तहखाने का सफर। तहखाने की सीढ़ियाँ पुरसुकून थी, मगर हर कदम पर सन्नाटा जैसे सांस लेता हो। आरिफ का दिल धड़क रहा था, न डर से बल्कि अनजान मंजिल की तरफ बढ़ने की बेचैनी से। अंदर एक गोल कमरा था, छत पर तारे नक्शी की तरह जड़े हुए और दीवारों पर पुराने शहजादों की तस्वीरें। बीच में एक संगमरमर का दायरा जहां रोशनी किसी नजर न आने वाले सोर्स से निकल रही थी। वहां पहले से मौजूद थीं 3 परियां, हर एक की आंखों में सदियों का इल्म। परिजाद, वही जो आरिफ को ताबीज दे चुकी थी, अब और भी पुरअसरार लग रही थी। उसने आरिफ को आगे बुलाया। आज से तुम्हारी तालीम शुरू होती है, उसने कहा। तुम्हें हुकूमत नहीं, इंसाफ सिखाया जाएगा। तलवार नहीं, तहजीब, तख्त नहीं, तकदीर को बदलने का हुनर। आरिफ के सबक। तब शुरू हुआ एक अजीब सफर। दिन रात का कोई हिसाब नहीं था, उस तहखाने में वक्त जैसे थम गया था। पहला सबक, हक का फैसला करना। आरिफ को एक नकली मुकदमा सुनाया गया जहां 2 लोग अपने झगड़े में उलझे थे। उसे बिना किसी साजिश के अपनी फितरत से फैसला देना था। उसने कहा, जिसके पास जख्म कम है वो गलती पर है, क्योंकि जुल्म करने वाला सबसे कम रोता है। परियां मुस्कुरा उठीं। दूसरा सबक, दिल पर काबू। इस बार एक परी उसकी तरफ बढ़ी, आंखों में अजीब सी मोहब्बत, होठों पर मुस्कान। वो परी परिजात थी। उसने आरिफ के हाथ में हाथ लिया और कहा, शहजादों के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान इश्क है, क्योंकि दिल जब टूटता है तो तख्त कांपने लगता है। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या परी भी इश्क कर सकती है? उसने पूछ लिया, नादान सा सवाल। परी ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखें कुछ कह गईं और हवा में एक मीठी सी खामोशी तैर गई। तीसरा सबक, ताबीज का इस्तेमाल। अब आरिफ को सिखाया गया कि ताबीज सिर्फ रोशनी नहीं, एक दरवाज़ा है माइनस सच, हिफाजत और रहमत का। वो उसे जुल्म रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, मगर सिर्फ तब जब उसका दिल बेनफा हो। एक नया एहसास। और इस सब के दौरान आरिफ और परिजात के दरमियान कुछ बदलने लगा था। पहले जो महज एक फरिश्ता लगती थी, अब एक रूह की तरह महसूस होने लगी। जब वो मुस्कुराती, आरिफ को सुकून मिलता। जब वो चुप होती तो दिल बेचैन हो जाता। मगर परियां मोहब्बत नहीं कर सकती। यह हुक्म था ताबीज की हिफाजत के लिए, और यही बना दिल का सबसे बड़ा रहस्य। तहखाने की दीवारें अब आरिफ को महज पत्थर नहीं लगती थीं। वो हर कोना, हर नक्श उसे परिजात की याद दिलाता था। मगर दिल में एक साया भी था उस मनाही का जो परियों और इंसानों के दरमियान मोहब्बत पर लगी थी। एक रोज जब सबक खत्म हुआ, आरिफ अकेला बैठा आसमान की नक्शी को देख रहा था, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। तभी परिजात धीरे से पास आई। कुछ लम्हों तक दोनों खामोश रहे, फिर आरिफ ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारी खामोशी अब शोर करने लगी है मेरे अंदर। क्या मेरे दिल का हाल तुम नहीं जानती? परिजात ने आंखें झुका ली। जानती हूँ, मगर हमारे दरमियान एक हद है जो ताबीज ने खींची है। अगर हम उस हद को पार करें तो ताबीज बेजान हो जाएगा और इस मुल्क की हिफाजत भी। आरिफ की आंखों में एक आंसू था। तो क्या दिल पर भी हुक्म चलता है? परिजात ने दर्द भरे लहजे में कहा, चलता तो नहीं, मगर रोकना पड़ता है।
उधर महल में सुल्तान फरहाद मीर अब और भी बौखलाया हुआ था। उसके जादूगरों ने पता लगा लिया था कि आरिफ अब इल्म के तहखाने में है, माइनस वो जगह जिसे सिर्फ असल शहजादा ही खोल सकता था। इसका मतलब साफ है, वजीर ने कहा, वही वारिस है जहां पनाह, और अब हमें उसे मिटाना होगा। सुल्तान ने सिर हिलाया, अगर मोहब्बत उसका कमजोर पहलू है तो वही हमारी चाल बनेगी। और तभी दरबार में एक नई परी कैद कर लाई गई। नाम था जरीना, जो कभी परिजात की बहन जैसी थी। इसका इस्तेमाल करो, सुल्तान बोला, और उस आरिफ को तोड़ दो, या मोहब्बत में या गुनाह में। जरीना को मोहब्बत के जहर में ढाला गया, उसे हसीन बनाया गया और ताबीज की खुशबू से लिपटा दिया गया ताकि आरिफ उसे पहचान सके। उसे भेजा गया तहखाने के रास्ते पर। इधर आरिफ और परिजात एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिल नाकाबू था। तभी जरीना वहां पहुंची। उसकी आवाज नरम, चाल लुभावनी। तुम ही हो ना वो शहजादा जिसकी मोहब्बत की कहानी आसमान की परियों तक पहुंची है? आरिफ चौंका। तुम कौन? मैं वो जो तुम्हारी मोहब्बत को परियों से बचा सकती है और उसे इंसान बना सकती है। जरीना की मौजूदगी में तहखाने की फिजा ही बदल गई थी। उसकी बातों में एक अजीब सा सुरूर था और आंखों में ऐसा जादू कि कोई भी उसकी तरफ खींच जाए। आरिफ एक पल के लिए सचमुच उलझ गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? मैं परी हूं और परियों को हर दिल की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उसके और करीब आई और बोली, अगर परिजात मोहब्बत नहीं कर सकती तो मैं कर सकती हूं। मैं वो लकीर मिटा सकती हूं जिससे ताबीज की हिफाजत और मोहब्बत अलग हुए। आरिफ की आंखों में सवाल थे, मगर दिल में हलचल भी। क्या वाकई जरीना उसे वो सब दे सकती है जो परिजात से मना था? उसी वक्त परिजात तहखाने की ऊपरी मंजिल पर खड़ी थी। जरीना की मौजूदगी उसे महसूस हो चुकी थी। वो समझ गई थी कि ये चाल किसकी हो सकती है। सुल्तान अब दिल पर वार कर रहा है, परिजात ने बुदबुदाया, और अगर आरिफ हार गया तो ताबीज भी मर जाएगा। परिजात ने सारी हिम्मत जुटाकर नीचे का रुख किया। उधर जरीना ने ताबीज की ओर इशारा किया, अगर तुम चाहो तो ये अब भी तुम्हारा हो सकता है, बिना किसी कुर्बानी के। मुझे चुनो, मोहब्बत पाओ और तख्त भी। आरिफ ने गहरी सांस ली। कुछ पल की खामोशी, फिर उसने कहा, तुम्हारी आंखों में सब कुछ है सिवाय उस सच्चाई के जो परिजात की खामोशी में है। जरीना चौंकी। क्या मतलब? मतलब ये कि मोहब्बत वही होती है जो अपने दिल को मारकर भी किसी को बचाए। परिजात ने मुझसे इजहार नहीं किया, मगर उसकी हर खामोशी मेरी अमानत है। इतने में परिजात सामने आ गई। जरीना उसे देखकर कुछ पल रुकी, फिर अपनी पुरानी बहन जैसी आवाज में बोली, तुम अब भी मोहब्बत से डरती हो बहन? परिजात ने नजरें मिलाकर कहा, डरती नहीं, उसकी हिफाजत करती हूं। जरीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके अंदर की साजिश जैसे टूट गई। माफ करना, मैं सुल्तान के कहने पर आई थी, मगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे आईना दिखा दिया। वो ताबीज को छूने लगी, मगर रोशनी फैल गई और ताबीज उससे दूर खींच गया। अब ये सिर्फ उस दिल का जो मोहब्बत को कुर्बानी समझे, मुकाबला नहीं। और उसी पल एक बिजली सी कौंधी महल की जड़ों तक ये असर पहुंचा। अब सुल्तान को यकीन हो गया कि आरिफ सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, तख्त के लिए भी खतरा है। जरीना की सच्चाई सामने आने के बाद अब आरिफ और परिजात के बीच सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक मकसद भी था, माइनस सुल्तान फरहाद मीर को उसके जुल्म से रोकना। तहखाने की आखिरी तालीम पूरी हो चुकी थी। ताबीज अब पूरी तरह आरिफ के हक में था। उसकी चमक अब सिर्फ रोशनी नहीं, एक शक्ति बन चुकी थी। परिजात सिर झुकाकर आरिफ के सामने खड़ी हुई। अब वक्त है कि तुम तख्त के लिए आगे बढ़ो, मगर याद रखना, ये जंग तलवार से नहीं, इंसाफ से जीतनी है। उधर महल में सुल्तान को जरीना की नाकामी की खबर मिल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। तो अब ये लड़का मोहब्बत और ताबीज दोनों का मालिक है। अच्छा, अब वो मेरा तख्त भी लेगा? हरगिज नहीं। उसने दरबार में ऐलान किया, आज से आरिफ को बगावत का सबसे बड़ा गुनहगार माना जाए। उसे जिंदा जला दिया जाएगा अगर पकड़ा गया। शहर में ऐलानात हो गए, इनाम घोषित हुआ, मगर अब आरिफ भागने वालों में नहीं था। आरिफ, परिजात और परियों की एक छोटी सी फौज ने जंगल के रास्ते से महल की तरफ कूच किया। रास्ते में गरीब लोग, मजलूम और किसान उनसे आ मिले, क्योंकि सब जान चुके थे कि यही है वो शख्स जो उनके लिए खड़ा हुआ है। महल के बाहर आरिफ ने अपनी माँ की मिट्टी उठाई और सिर से लगाकर कहा, मैं ये जंग तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ अम्मी, ताकि किसी और बेटे की माँ को तख्त की खातिर रोना न पड़े। तभी शाही फौज सामने आ खड़ी हुई, तैयार, बेरहम और हुक्म के पाबंद। लेकिन आरिफ ने ताबीज को आसमान की तरफ उठाया। एक नूर निकला और जो फौज जुल्म के लिए खड़ी थी वो कांपने लगी।
जो इस लड़ाई में शामिल है वो सोच ले, वो बादशाह के लिए लड़ रहा है या इंसाफ के खिलाफ। आरिफ की आवाज गूंज रही थी और फिर बहुत से सिपाही अपने हथियार जमीन पर रख देते हैं। कैदी के दरवाजे टूटते नहीं, खुद ब खुद खुल जाते हैं। महल के सिंहासन पर अब आरिफ खड़ा था, सुल्तान के सामने। क्या तुम मुझे मारोगे? सुल्तान चीखा। आरिफ ने कहा, नहीं, मैं तुझसे वो सब छीनूंगा जो तुझे सबसे प्यारा है, तेरा गुरूर। वो तख्त के पास गया और बैठने के बजाय खड़ा रहा। मैं इस तख्त पर नहीं बैठूंगा जब तक इस मुल्क में भूख है, बेइंसाफी है और डर है। मैं बादशाह नहीं बनूंगा, मैं हिफाजत करने वाला बनूंगा। और उसी पल परिजात की आंखों से आंसू गिरा। अब ताबीज का मकसद पूरा हुआ, अब मोहब्बत आजाद है। आरिफ ने महल की ऊंची मीनार से शहर की तरफ देखा। सुल्तान का तख्त अब उसकी पकड़ी हुई तलवार की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में ताज की चमक नहीं बल्कि एक नई रोशनी थी, इंसाफ की, मोहब्बत की और ताबीज की असली ताकत की। महल के सामने बगावत का खत्म होना तय था और अब लोग जानते थे कि आरिफ वही शहजादा है जिसे उनके दिलों में हुकूमत चाहिए थी, न कि सिर्फ तख्त। सुल्तान ने हार मान ली थी, मगर दिल में घृणा और असहमति थी। तुम मेरा तख्त ले सकते हो, मगर मेरी ताकत नहीं, मैं फिर उठूंगा, सुल्तान ने जहरीली आवाज में कहा। आरिफ मुस्कुराया। तुम्हारी ताकत सिर्फ डर और जुल्म पर आधारित थी और अब वो दोनों खत्म हो चुके हैं। तभी परिजात उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांति से भरा था। उसने आरिफ के पास जाकर कहा, तुमने वो सब कुछ किया जो हम परियों के लिए नामुमकिन था। मोहब्बत को भी मुकम्मल किया और इंसाफ को वापस लाया। आज तुमने अपना तख्त नहीं लिया, तुमने लोगों के दिलों में अपना मुकाम बना लिया है। आरिफ ने परिजात को देखा और उसकी आंखों में जो प्यार था वो कुछ अलग ही था। अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं, पूरे समाज की होती है। जब दिल सच्चे होते हैं तो तख्त भी अपनी अहमियत खो देता है। तुम कहती हो कि मैंने मोहब्बत मुकम्मल की है, पर क्या तुम मानोगी कि हम दोनों का रिश्ता भी मुकम्मल हो सकता है? आरिफ ने पूछा। परिजात ने चुपके से कहा, तुमने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि मैं मोहब्बत करना चाहती हूँ या नहीं। अब सवाल यह है कि क्या तुम मेरी मोहब्बत को समझ सकते हो? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा। अब वो जान चुका था कि मोहब्बत सिर्फ तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपने दिल की सच्चाई को नहीं स्वीकारते। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों एक साथ हैं, एक मुकद्दर के लिए। अब सुल्तान का तख्त, उसकी ताकत और उसकी चालें सब मध्यम पड़ चुकी थीं। शहर में शांति छा गई थी और लोग आरिफ को सिर्फ शहजादा नहीं बल्कि उनका असली राजा मानने लगे थे। परिजात अब अपनी पूरी शक्ति और अपने असल मकसद को समझने लगी। वे आरिफ के साथ खड़ी थी ताकि इंसाफ और मोहब्बत की हकीकत को सब तक पहुंचाया जा सके। आरिफ ने तख्त को नकारते हुए अपनी मर्जी से एक नई राह चुनी। वो रास्ता था इंसाफ, मोहब्बत और समाज की हिफाजत का, और इसी में उसका ताज था। एक ताज जो किसी राजमहल में नहीं बल्कि दिलों में था। मैं ना राजा बनूंगा ना बादशाह, आरिफ ने कहा, मैं वो बनूंगा जो लोगों के दिलों में राज करता हो, वो प्यार और सुकून जो हर किसी का हक है। अंत में आरिफ और परिजात ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने हाथों में ताबीज को लिया। अब ये सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि मोहब्बत की असली निशानी थी। और उसी दिन से तख्त की जंग खत्म हुई और इंसाफ और मोहब्बत की राह शुरू हुई। ये कहानी एक नए दौर की शुरुआत थी जहां हर दिल में राज करता था। तो ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।